Good morning, dear students. Today we will study chapter 1 of supplementary reader, How Camel Got His Hump. This is a very interesting chapter. It was written by Rudyard Kipling. So, Rudyard Kipling. Before starting the chapter, I will tell you about the Rudyard Kipling. Rudyard Kipling born in 1865 and he died in 1936. His major achievement in his life was he got the Nobel Prize in Literature in 1907. He was a great writer. He wrote so many fictions, plays, and we have learned so many things from him also. So now let's start our chapter, How Camel Got His Hump. You all have must seen the camel in your life and you have also seen his hump. So आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों की कैमल की बॉडी पे हम्प कैसे आई. सो स्टार्ट द चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन. स्टूडेंट्स, ये उस टाइम की बात है जब अभी दुनिया शुरू हुई थी. एनिमल्स ने ह्यूमन के लिए काम करना ही शुरू किया था. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल्स की ह्यूमन के साथ क्या कंपैटिबिलिटी हुई, कैसे कैमल ने डिनाई किया. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a rolling desert because he did not want to work. ये उस टाइम की बात है बेटा जब दुनिया शुरू हुई थी और उस टाइम कैमल कहाँ रहता था? मिडल ऑफ द डेजर्ट. आप सबको पता है डेजर्ट का क्लाइमेट किस तरह से होता है, वेरी हॉट क्लाइमेट. एंड ही एट sticks and thorns and prickles. And when anybody spoke to him, he said hum, just hum and no more. जब भी कोई उससे बात करता तो वो सिर्फ क्या कह देता? hum, nothing else. Then firstly the horse came to him on Monday morning. Monday morning को horse उसके पास जाता है और उसे बोलता है चलो कैमल हम काम पे चलते हैं, let's start the work together. But he said hum. He is saying simply hum. He is saying nothing. And hum said the camel and the horse went away and told the man. और वो जाके इंसान को बताता है कि camel is saying like this. Presently the dog came to him with a stick and in his mouth and said, Camel, O camel, come and fetch and carry like the rest of us. Then dog went to the camel and said, come and do the work. Again the camel simply said hum. Now it's the turn of ox. Ox came to him and with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. Now ox is saying come and do the work like us. तो camel का इस बार भी simply क्या आंसर होगा? hum. So camel is saying simply hum to them. At the end of the day, the man called the horse, dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you, but that hump is the desert can't work. The hump think that in the desert can't work or he would have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. तो अभी वो उसको जाके बोलते हैं कि तुम मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, मुझे बुरा भी लग रहा है कि तुम लोगों ने इतना काम किया है एंड ही इज़ डूइंग नथिंग फॉर दैट. अब इस बात से उन्होंने मतलब उनको तुम्हें उसके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. अब उन तीनों को जब वो गुस्सा आता है तो दे डिसाइडेड टू टेक अ पंचायत. अब उस पंचायत में व्हाट दे आर डूइंग एंड द कैमल केम च्यूइंग द कर्ड एंड लाफ्ड एट देम एंड देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन. अब कैमल उस पंचायत में आता है एंड ही सिंपली अगेन केम ओवर देयर. वो ही लाफ्ड ऑन देम, वो उन पर हंसता है और सिंपली उनको कहता है हम एंड ही वेंट अवे. Presently, there came along the genie, who was in the charge of all desert, rolling in a cloud of dust. अब वहाँ पे अचानक से एक जिन आ जाता है, एक डस्ट के अंदर, क्लाउड के अंदर घूमता हुआ. The jinn demonstrated with the camel, who said hum. The camel beautiful back suddenly grew a lump, which was camel's hum. अब जिनी जो उसको कहता है कि तुम मतलब कैमल के पास जाता है और उससे बात करता है कि कैमल तुम भी काम कर लो. द कैमल अभी वो कैमल उसको भी बोलता है हम, तो उसकी बॉडी पे उसको अचानक से एक हम निकल आता है. द जीनी एश्योर्ड द कैमल हिज हम वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. The genie rolled himself up in the dust cloak and took a walk
across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. अब कैमल उसको क्या जीनी उसको बोलते हैं कि कैमल यू ऑल्सो गो फॉर द वर्क, बट कैमल इज नॉट गोइंग ओवर देयर. ही सॉ द कैमल. कैमल अपने आप को पानी में देख रहा होता है, अपनी रिफ्लेक्शन को. बेटा दिस इज द टाइम व्हेन द मिरर वाज नॉट देयर. कैमल इज लुकिंग हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर. वैसे भी एनिमल्स जो हैं अपनी रिफ्लेक्शन को पानी के अंदर ही देखते हैं, तो वो उसको देख रहा होता है तो उसको अपनी बॉडी पे एक अगली हम्प दिखाई देता है. माई फ्रेंड सेड द जीनी. जीनी बोलता है उसे, माई फ्रेंड व्हाट दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. मुझे क्या सुनने को आ रहा है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे. द जीनी सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड. वो अपनी चिन पे हाथ रखकर बैठ जाता है. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. बट अभी कैमल स्टिल अपनी रिफ्लेक्शन को पानी के अंदर देख रहा होता है. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग. तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे मंडे मॉर्निंग से, जब पहले हॉर्स आया, डॉग आया एंड ऑक्स आया. ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जीनी एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन हिज हैंड. मतलब वो फिर वही इस चीज़ को ही सोचता जा रहा होता है कि कैमल हैज़ डन नथिंग. हम अगेन, कैमल का तो एक ही काम है, क्या? हम. ही सेड अगेन हम. आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जीनी. जीनी कहते हैं कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं दोबारा हम्प ना बोलता. My friend said the genie, what's this? I hear of you doing no work. The genie sat down with his chin in his hand, and while the camel, sorry students, I'm repeating this, while the camel looked at his own reflection in the pool of water. Camel was still looking at his reflection, and he was saying hum. I should not say that again if I were you, said the genie. Genie कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये दोबारा कभी ना कहता. You might say it once too often. I want you to work. Genie was saying कि मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. And the camel said hum. Camel तो कहेगा ही सिर्फ hum. But no sooner had he had it than he saw his back that he was so proud of, puffing up in a great big hum. मतलब उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी जो hump थी. Do you see that? said the genie. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. अभी जीनी उसको बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी हम कैसे आई है, क्योंकि तुम 3 दिन खाली बैठे रहे और तुमने कोई काम नहीं किया. एंड टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. तुमने मंडे से लेकर अभी तक कोई काम नहीं किया, जबकि आज थर्सडे हो गया है. व्हेन द वर्क बिगिन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. हाउ कैन आई सेड द कैमल विद हिज हम ऑन माई बैक. अब कैमल कहता है कि मैं इस हम के साथ काम कैसे करूँगा. दैट हैज़ अ पर्पस. जीनी ने कहा कि इसका एक पर्पस है. ऑल बिकॉज यू मिस दो 3 days यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. वो कहते हैं कि तुम, इसका एक पर्पस है कि तुमने जो 3 दिन काम नहीं किया था उस 3 दिनों के लिए ये हम पाया है, उन 3 दिनों के कारण. एंड यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. अब तुम 3 दिन बिना खाए पिए काम कर सकते हो, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम. अब तुमने जो बैठ के अपनी बॉडी में जो फूड स्टोर किया है, दैट यू विल यूज़. 3 दिन बिना खाए पिए काम करो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव. तो वो कहता है कि तुम इस डेजर्ट से बाहर निकल के उन तीनों के पास जाओ और काम करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ hump. We call it hump now and now to hurt his feelings. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world. And he has never yet learned how to behave. But हम देखा जाए तो कैमल की हम्प अभी तक है. वो कैमल की हम्प क्यों है? क्योंकि जो वो 3 दिन बीत गए हैं वो कैमल को अभी तक नहीं मिले हैं. बट यू हैव सीन कि कैमल अब क्या है कि काफ़ी दिनों तक बिना खाए पिए भी काम कर सकता है, जीवित रह सकता है. ही इज़ डूइंग दैट. बट उसने जो वो 3 दिन मिस कर दिए थे वो 3 दिन वापस नहीं आए हैं. इसके लिए में उसकी हम जो है उसकी बॉडी पर अभी तक है. नाउ वी विल डू द कॉम्प्रिहेंशन चेक. होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स.